Good afternoon to all. I am Tejkaran Narolia, Assistant Professor, Rabindranath Tagore University, Bhopal. On behalf of Rabindranath Tagore University, heartily welcome to all participants for today's session on prototype validation and converting prototype into startup. This is the last event of our curriculum of this year of Institute Innovation Council. I welcome our eminent speaker, Dr. Amit Kumar Marwa sir. I also welcome to Dr. Sanjeev Kumar Gupta, Dean of Faculty of Engineering, Rabindranath Tagore University, Dr. Deepak Motwani sir, Secretary of Institute Innovation Council of Rabindranath Tagore University, all HODs, all faculties members, my colleagues and dear students. Before going to start the session, let me introduce our prominent speaker, Dr. Amit Kumar Marwa sir. He is professor and head at Acropolis Institute of Technology and Research, Indore. He is also a good entrepreneur, innovator, mentor, researcher. He is professor and living the He is professor and having the experience of 20 years in the higher education. He is very skilled person in the teaching of core subject, entrepreneurship, education, industrial engineering and operation management. He has the strong education professional with graduation in mechanical engineering and a doctor of philosophy in the area of supply chain management from the SGS ITS Indore, and they also hold 2 patents. So I request our HOD sir, Dr. Vinay Kumar Yadav sir. Sir, please welcome to our speaker, today's speaker. Good afternoon, one and all present here. First of all, on the behalf of Faculty of Engineering, Rabindranath Tagore Institute, I welcome our eminent speaker, Dr. Amit Kumar Marwa sir, HOD, Mechanical Department, Acropolis Institute of Research and Technology, Indore. I also welcome Dr. Sanjeev Gupta sir and Dr. Deepak Motwani sir in this session. I also welcome all faculty members and participants in this session. As you know that we are continuously organizing various lectures on startup. In this series, I think this is another useful and fruitful session for us. So not wasting much time, I invite Tejkaran sir to proceed the session. Okay, sir. Thank you, Vinay sir. So my request, sir, please take session. Amit sir. Sir, Amit sir, I request you, please. Yeah, shall I start? Yeah, sir. Okay, your voice was coming low, so I could not hear properly. Yeah, so I will share the screen now. Can you please just confirm whether the screen is visible or not? Yeah, sir, visible. Screen is visible. Okay, fine, thank you. So a warm Monday morning to all of you, and thank you RTU for inviting me to deliver this talk, rather a session, and special thanks to Deepak Motwani ji, who was a long-term friend, and thanks to the management of RTU for having me here. So dear participants, all my dear colleagues, respected senior persons and dear students, the topic is simple yet little bit typical. So without further delay, let me go through this. This is going to be our agenda and we will explore together. Rather, I would like to have the total exploration kind of session. We'll start with startup because ultimately you have to convert your prototype to startup. So what do you mean by startup? And in the Indian scenario, what does startup mean and where do we stand? Then this is a process. So we'll go for NPD, new product development,
then the prototype, its meaning, the process, the types, testing of prototype, validation, conversion, very important. Many of people fail here. They do not convert for some or the other reasons. And then lastly, there will be an open floor for any query, discussion by anyone. So let us explore together. And I will also be learning with your queries and question. So the first thing is startup. I had given some dictionary meanings because it's a very buzzword, startup. So startup is basically nothing. It's a beginning. Okay, beginning of an era, just like you have a beginning of a session. So any onset, outset, initialization is called startup. And as I said, this is a very buzzing word these days. So basically in terms of the meaning related to the context, startup is nothing but it's a young company. Okay, when two or more entrepreneurs, they come together, they have an idea, they develop a product or a service and bring it to the market. So we call that particular setup or company as startup. And basically initial funding normally is through friends and relatives. So this is a basically startup initiation. Okay, and you can understand. Yeah. Sir, it will be beneficial for our students if you use bi-language, sir. Yeah. Tejkaran sir, any? Yes, bi-language, sir. If you use Bi-language, fine. Yeah, sir. Because I was our coming to it. yeah. Thank you. Thank you, sir. So startup basically is a sum total of so many things. आप देख रहे हैं, this diagram is showing money, teamwork, innovation, technology, marketing, strategy, ये सारा मिला के स्टार्टअप बनता है. तो हमारी जर्नी है आइडिया से लेके प्रोटोटाइप से स्टार्टअप कन्वर्जन करना है. उसके बीच में क्या प्रोसेस है वो हम आज देख रहे हैं. सो सिंपली अगर हम देखें, सिंपली इफ यू हैव टू पुट, तो स्टार्टअप इज नथिंग, इट इज अ कंपनी विच इज इन इट्स इनिशियल स्टेज ऑफ ऑपरेशंस. शुरुआती दौर में जो कंपनी का फेज होता है उसको स्टार्टअप बोलते हैं. और जस्ट टू हैव यू एन आइडिया, कैम्ब्रिज डिक्शनरी शोज अ स्मॉल बिजनेस दैट हैज जस्ट बीन स्टार्टेड, जो अभी अभी स्टार्ट हुआ है. ओके, डियर स्टूडेंट्स जो वहां पर हैं, यंग स्टूडेंट्स स्पेशली, स्मॉल बिजनेस, फादर्स बिजनेस, फैमिली बिजनेस और स्टार्टअप में अंतर है. ओके, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिए, जो अभी अभी स्टार्ट हुआ है. पिताजी से कुछ आया हुआ है ऑलरेडी, फैमिली बिजनेस, और आपने कुछ करा, वो नहीं कहलाएगा. सो टू कीप इट सिंपल, इट इज अ कंपनी, एक या दो एंटरप्रेन्योर मिलकर बना रहे हैं जो इनिशियल स्टेजेस में, एज सिंपल एज दैट. इंपॉर्टेंट क्यों है ये? बिकॉज दिस इज अ स्टार्टअप एरा. मैंने पहले भी बताया, बस वर्ड है स्टार्टअप. एंड एज यू कैन सी, वी आर ए कंट्री हैविंग मोर देन 1.4 बिलियन पॉपुलेशन एंड काउंटिंग. सो हाउ दे आर गोइंग टू बी एंगेज्ड, उनका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगा, ओके, जॉब्स कहाँ से आएंगे, और एवरीबडी कैन नॉट हैव जॉब. ओके, लुकिंग इनटू द राइजिंग पॉपुलेशन. सो देयर कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टार्टअप. स्टार्टअप इसलिए और जरूरी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी है और इंगेजमेंट भी है, यूथ इंगेजमेंट. इसीलिए गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है थ्रू मेनी प्रोग्राम्स. ओके, और इस कोविड टाइम में लास्ट 1.5 साल 2 साल से दिस स्टार्टअप क्रेज, मैं इसको कहूँगा क्रेज हो गया है, मैनिया नहीं बोलूँगा, ये क्रेज बढ़ गया है, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज एडवर्सिटी से जनरेट होते हैं. बस थोड़ा सा मेंटरिंग, थोड़ा सीधे अच्छे तरीके से चलेंगे तो स्टार्टअप कन्वर्ट होता है. सो टू गिव यू मोर आइडिया अबाउट स्टार्टअप, ओके, दिस इज, एवरी स्टूडेंट शुड वॉच दिस. तेजकरण सर, साइट दिख रहा है? तेजकरण सर, आ रही है आवाज सर आपको? हाँ, नहीं, कैन यू प्लीज, वेबसाइट दिख रही है? वेबसाइट, यस सर, स्लाइड शो रही है. थैंक यू. सो एज आई सेड, गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है, तो ये स्टार्टअप इंडिया की साइट है, अमेजिंग साइट. यू कैन सी सो मेनी टैब्स, पोस्टर्स चलते हैं, सो मेनी इवेंट्स आर गोइंग ऑन.
ये स्टार्टअप वीक का भी चल रहा है, महाराष्ट्र स्टार्टअप वीक. मी एंड माई कलीग आर ऑल्सो अप्लाइंग टुडे. सो जो भी यंग एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है या स्टार्टअप करना चाह रहा है, वो ये गवर्नमेंट साइट को जरूर ध्यान में रखिए. आप मोबाइल पे भी इसको कर सकते हैं और डेस्कटॉप पे भी, लैपटॉप पे भी. सो दिस इज हाउ गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग. So we expect that during this COVID time, we will see lot many ideas, innovations, and ultimately they will be converting into startups. Okay. Indian startup ecosystem. हम स्टार्टअप करते हैं, कुछ वेस्टर्न टर्म्स है स्टार्टअप्स, फंडिंग, बट इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो कैसा है, क्योंकि हमें उधर की तरफ जाना है. सो आई विल शो यू वन इम्पॉर्टेंट स्लाइड हेयर, वेबसाइट हेयर. आप देखिए इसको. ये जो साइट है, दिस इज ब्लिंक. दिस इज शोइंग हमारी कंट्री में स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसा है. तो एज यू कैन सी, नंबर 1 पे बेंगलोर है, नंबर 2 पे दिल्ली है, नंबर 3 पे मुंबई है, एंड सो ऑन. सो यू कैन फाइंड भोपाल, you can find Indore is at number 15, and so these websites, Bhopal is at 29. Okay. So this is how our startup ecosystem is ranked. और आपको लगता है कि मैंने कुछ स्टार्टअप किया है, वो मेरे सिटी में नहीं हो पा रहा, तो इसको मैं कन्वर्ट करूं किसी दूसरे स्टेट में. सो यू कैन हैव स्टेट वाइज रैंकिंग ऑल्सो. सो दिस इज वेयर वी आर फेयरिंग. हम इंडिया में स्टार्टअप का इकोसिस्टम किस तरह से चल रहा है. तो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट डेटाबेस फॉर यू. सिमिलरली हम स्टार्टअप की आज बात कर रहे हैं, बट इसकी हिस्ट्री आप देखेंगे तो इट्स वेरी ओल्ड. लुकिंग इनटू द टाइम एंड माय एंगेजमेंट्स, आज मैंने आपके क्विज नहीं किया, नहीं तो मैं अभी यहाँ पर क्विज पूछता कि आपको पता है, बट स्टिल आई विल रिक्वेस्ट यू टू give an idea about the very early startup in Indian ecosystem. Okay, can I see in the chat box some early stage startup ecosystem beginning जहाँ हुई थी इंडिया में? Anybody would like to post in the chat? जैसा मैंने आपको अभी बताया 2-3 बार, स्टार्टअप बहुत सारा यूज होता है, बट इसकी हिस्ट्री किसी को पता है इंडियन स्टार्टअप की? एनीवन? यू कैन पोस्ट इन द चैट बॉक्स प्लीज. ओके, मंडे मॉर्निंग ब्लूज. So let us go to the history. This another website. सबने हॉटमेल सुना होगा, right? हॉटमेल, सबीर भाटिया. So this is one website which will give you the glorious history of Indian startups. Okay? पढ़ते रहिए आप लोग, बुक्स पढ़ रहे हैं इधर. So आप देखेंगे इसमें सबीर भाटिया, if you can see, I can highlight also. सबीर भाटिया ने हॉटमेल बनाया था way back in 1998. उसने सेल आउट कर दिया. देन विनोद खोसला जी, सन माइक्रोसिस्टम, उन्होंने पहले को फाउंडर किया था, देन सोल्ड आउट. देन विनोद धाम, AMD प्रोसेसर. तो एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया इज नॉट वेरी न्यू. ओके, इट्स वेरी ओल्ड. वो तो हमने अभी थोड़ा नाम दे दिया है, थोड़ा इसको स्ट्रक्चर्ड कर दिया है, इस तरह से ये बहुत सारे चल रहे हैं. और अभी आपने सुना होगा फ्लिपकार्ट, ओके, स्नैपडील, जोमेटो, ओयो. तो ये चीज़ें अभी हैं, और अभी जो डेटाबेस है वो बता रहा है कि सक्सेसफुल स्टार्टअप्स काफ़ी हैं. ओके, और नॉट ओनली इन इंडिया, ये वर्ल्ड में भी कर रहे हैं. सो एज यू कैन सी, ग्लोबली इंडिया इज रैंकिंग एज द 3rd फास्टेस्ट ग्रोइंग बेस ऑफ स्टार्टअप्स. ओके, विच इज अ गुड साइन. ओके, सो दिस इज इन ब्रीफ अबाउट स्टार्टअप जिसको हम करना चाह रहे हैं. सिमिलरली जब आप आइडिया की बात करते हैं तो बिजनेस भी हैं, सर्विसेज भी हैं. तो दिस इज अनदर गुड रिपोर्ट बाय इकोनॉमिक टाइम्स. अब डिमांड आ गई है इनोवेशन की. सो दिस इज हाउ डिमांड लेड इनोवेशन इज बीइंग
लेड फॉरवर्ड। अभी के ज़माने में क्या हो रहा है, डिमांड लेड इनोवेशन, उससे स्टार्टअप इकोसिस्टम कर रहा है। तो अभी देखिए इसमें, दिस वेरी गुड आर्टिकल, द टाइमिंग कुडंट बी बेटर फॉर द स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो जो मैं समरी में आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये बेस्ट टाइम है एनी आइडिया को स्टार्टअप में कन्वर्ट करने का, जिसके लिए ये सेशन भी रखा हुआ है। ओके, सो फेज 1 फेज 2 में किस तरह से आप जा रहे हैं। सो ऑल दिस यंग पीपल आउट देयर, वो आप देखते रहिए इसको किस तरह से हो रहा है, एंड हाउ कॉर्पोरेट्स आर एंगेजिंग विद स्टार्टअप्स। ओके, यू कैन सी बड़ी बड़ी कंपनीज भी अब क्या कर रही हैं, हैकेथॉन्स इवेंट्स करके स्टार्टअप को प्रमोट कर रही हैं। फाइन, सो दिस इज अबाउट स्टार्टअप बेसिकली, और सिंपल सा आइडिया है, बट अगर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं है। ओके, आप मन खुश हो जाएगा। सो द मोस्ट आइडियाज दे आर नथिंग विदाउट एग्जीक्यूशन, एंड वी आर हेयर टू हैव एन आइडिया अबाउट हाउ टू एग्जीक्यूट। हम यहाँ पर ये सेशन इसीलिए कर रहे हैं। ओके, तो आपको एक ओवरऑल आइडिया लगा स्टार्टअप का और इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसा है। अब हम आते हैं इस प्रोसेस में, विच इज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आपने कुछ एक नया प्रोडक्ट बनाना है तो आइडिया से लेके पूरी स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं वो हमें देखना है, क्योंकि हमारा टॉपिक उसी से रिलेटेड है। ओके, सो यहाँ पर आपको दिख रहा है, वंस यू हैव एन आइडिया, बिल्कुल लेफ्ट में, देन यू गो फॉर स्क्रीनिंग ऑफ आइडियाज। ओके, आप उसको फिल्टर करते हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, फिर आप डिज़ाइन उसको क्लियर डिज़ाइन में लेके आते हो कि ओके ये होना चाहिए। उसके बाद ये प्रोटोटाइप बनता है, ऊपर दिख रहा है आपको प्रोटोटाइप। उसकी टेस्टिंग होती है, प्री प्रोडक्शन होता है, फिर लॉन्च करते हो, और लॉन्च के साथ साथ प्रोडक्शन चालू हो जाता है। ओके, हीरो की इलेक्ट्रिक बाइक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, एथर करके आ रहा है, इलेक्ट्रिक कार आ रही है टेस्ला की, तो ये सारा प्रोसेस चलता है। ओके, तो यू हैव स्पेसिफिकेशन बेस्ड डिज़ाइन, प्रोडक्ट बेस्ड डिज़ाइन, एंड देन प्रॉपर्टी बेस्ड, डिफरेंट प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी वो बेस्ड स्पेसिफिकेशन सिलेक्शन होंगे। सो ये कंप्लीटली जो आपको दिख रहा है ये क्या है, जस्ट अ मिनट, आई कैन पुल दिस डाउन। ओके, सो ये पूरी प्रोसेस जो है ये कहलाती है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसी में ही आइडिया से लेके स्क्रीनिंग करने के बाद जब हम प्रोटोटाइप बना रहे हैं, वहाँ से आगे जाने के लिए सेशन है। ओके, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। ये एक और तरीका है एनपीडी बताने का। सबसे ऊपर आइडिएशन है, देन यू हैव डिज़ाइन, देन यू हैव सम बिजनेस स्ट्रेटेजी, फिर आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हो, प्रोटोटाइपिंग करते हो, फिर मार्केट में टेस्ट करते हो, फिर कमर्शलाइज करते हो, और मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है। देन सो दिस इज बेसिकली एनपीडी। अब हम आते हैं प्रोटोटाइप पे। ओके, प्रोटोटाइप क्या है? इट्स द फर्स्ट मॉडल। कोई भी चीज़ आप बना रहे हो उसका पहला जो मॉडल आएगा वो कहलाता है प्रोटोटाइप। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है। ओके, फाइन। तो प्रोटोटाइप कैन बी अ कॉन्सेप्ट जिसको आपने थोड़ा प्रूवन कर दिया हो। ओके, कोई मॉडल हो सकता है, ये वर्किंग मॉडल, फंक्शनल मॉडल, कुछ डिज़ाइन हो सकती है, कुछ सॉफ्टवेयर हो सकता है, बीटा वर्जन। फाइन, तो ये सब मिला के प्रोटोटाइप बनता है। फाइन, फाइन। लेट मी टेक दिस समवेयर एल्स। ओके, क्लियर? तो प्रोटोटाइप क्या होता है इसको हम समझते हैं। सो अगेन द कैम्ब्रिज डिक्शनरी सेज प्रोटोटाइप क्या है? द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। आप कोई मशीन बना रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उसका जो पहला एग्जाम्पल है, सबसे पहला वो कहलाता है प्रोटोटाइप, जिससे बाकी सब फॉर्म्स निकलते हैं आगे चल के। रिफाइन हो के क्या होगा, अगले फॉर्म्स निकलेंगे। सो इट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। ओके, दूसरे वे में देखेंगे हम। सो ये पहला मॉडल है। ओके, द फर्स्ट मॉडल ऑफ समथिंग। ओके, जिससे दूसरी चीज़ें निकल रही हैं। तो जो फाइनल प्रोडक्ट होता है और प्रोटोटाइप, इसके बीच में नंबर ऑफ फेजेस होते हैं, टाइम होता है। तो पहली जो चीज़ आपके सामने आई है
वो कहलाती है प्रोटोटाइप। ओके, तो जरूर नहीं प्रोटोटाइप एक्चुअल कार ही हो या एक्चुअल सॉफ्टवेयर ही हो, तो वो चीज़ हमें देखनी है कि क्या होता है। तो क्या लिखा है ये, इट इज द फर्स्ट और प्रिलिमिनरी मॉडल ऑफ समथिंग फ्रॉम विच अदर फॉर्म्स आर डेवलप्ड और कॉपीड। ओके, उसको आप मॉडिफाई, इम्प्रोवाइज, मॉडिफाई, फाइन ट्यून कर करके नया जब फाइनल बनाते हो वो प्रोडक्ट कहलाता है। राइट, नाउ कई बार हम समझते हैं कि कुछ बना के देना होगा। एक कॉमन बच्चे समझता है प्रोटोटाइप मतलब कुछ बना के देना पड़ेगा मशीन। तो आप देखेंगे प्रोटोटाइप में स्क्रीन के आपके सीरीज ऑफ स्क्रीन स्केचेस। ओके, मैंने एक जजमेंट किया था, उसमें एक कुछ नया मॉडल बनाना था एटीएम टाइप का। तो वहाँ पर बच्चों ने क्या किया था, प्रोटोटाइप में वो कार्डबोर्ड लेके आए, उसमें उन्होंने बटन स्क्रीन दिखाया और एक के पीछे कार्डबोर्ड रखे हुए थे 10-12। तो उन्होंने पूरा करके बताया कि वंस यू ओके ऑपरेट दैट बटन, उसको आप करोगे तो नेक्स्ट स्लाइड में ये आएगा, नेक्स्ट कार्डबोर्ड में ये आएगा। इस तरह से उन्होंने पूरा प्रोसेस दिखा दिया। पूरा एटीएम टाइप का बनाने की जरूरत नहीं थी। क्या करा उन्होंने, स्केचेस बनाए और उसको 1 बाय 1 हटाते गए वो। ओके, आप देखेंगे भी कुछ वीडियोस देखिएगा, उसमें दिखाते हैं स्टार्टअप में वो कार्डबोर्ड में रखा हुआ है, पुश किया तो इधर से कुछ निकाला, फिर ऐसे कुछ किया। तो एटीएम में क्या होता है, एग्जाम्पल, आपने कार्ड अंदर पुश किया, कुछ आएगा, फिर आप सिलेक्ट करोगे, फिर अलग अलग ऑपरेशंस होंगे। उसको जरूरी नहीं है आप पूरा एटीएम बनाओ, इट्स कॉस्टली। ओके, सेकेंड होता है स्टोरी बोर्ड। अगेन कुछ कार्टून सॉर्ट ऑफ थिंग्स हम क्या करते हैं, पूरी स्टोरी के थ्रू दिखाते हैं, इस तरह से चलेगा। ओके, एक पीपीटी भी हो सकती है, कुछ वीडियो हो सकता है, कुछ वुडन ब्लॉक्स हैं, कार्डबोर्ड हैं, उनसे आप बना सकते हो। और जो सॉफ्टवेयर साइड में है वो एक बीटा वर्जन बना सकते हैं, पीस ऑफ सॉफ्टवेयर जिसकी लिमिटेड फंक्शनलिटी होगी, वो ओवरऑल बता देगा कि ये ऐसे 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 काम करेगा। ओके, और जिसको आप और कोडिंग रिफाइन कर रहे हो अभी। गॉट इट? तो प्रोटोटाइप से आप बिल्कुल ये मत समझिए कि कुछ बना के ही देना होगा एक्चुअल। ओके, बिकॉज बहुत कॉस्टली होता है। यहाँ पर देखिए जो नंबर ऑफ डेज आप देखेंगे एक्स एक्सिस पे, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, पीओसी। आपका आइडिया तो ठीक है, बट उससे कुछ होगा कि नहीं होगा, तो कुछ दिन लगा के एनालिसिस करके आप सबसे पहले पीओसी देते हो। ओके, क्योंकि ये पहली स्टेज है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। फिर आप उसको और समय लगता है, देन यू गेट द प्रोटोटाइप जिसकी हम बात कर रहे हैं। ओके, फिर कुछ और वीक्स लगेंगे, मंथ में, देन यू गेट मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट वायबल तो हो तो आप एक मिनिमम बनाते हो, मिनिमम जिसमें कोई फीचर एक्स्ट्रा नहीं है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। उसके बाद जाके प्रोडक्शन होता है। सो दिस एंटायर ग्राफ शोज यू द फुल साइकिल, किस तरह से जाते हैं। और अभी हम बात कर रहे हैं प्रोटोटाइप की, फाइन, वेयर यू आर सिमुलेटिंग। ओके, दिख रहा है आपको? अनदर वे टू रिप्रेजेंट इज दिस, आप मार्केट प्रोडक्ट को डालने जा रहे हो तो सबसे पहले क्या होगा, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, जो कि फिजिबल सॉल्यूशन बताता है। बहुत सारे सॉल्यूशंस में से एक जो फिजिबल है उसको हम बोलते हैं पीओसी, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। उसके बाद आप उसको सिमुलेट करके, जो भी दिखाया मैंने अलग अलग तरीके से कैसे बनाओगे, उसका प्रोटोटाइप बनाते हो। ओके, तो आपको दिख रहा है हाउ वी विल बिल्ड इट एंड हाउ इट विल बी यूज्ड। खाली ये यूसेज दिखाने के लिए हम प्रोटोटाइप यूज करते हैं। देन एमवीपी बनता है, जो बताता है कि ये बनना चाहिए एक्चुअल। ओके, और ये काम का है, वायबल है। फिर आप लास्ट में जाके वैलिडेशन करके उसको, सारी प्रोसेस है, बिजनेस मॉडल, कैनवास और वो, तो आप फाइनल प्रोडक्ट लेके आते हो। तो ये चीज़ आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए। आइडिया, पीओसी, देन प्रोटोटाइप, उसके बाद की बातें हैं सब। ओके, अब देखिए प्रोटोटाइप जो है वो बहुत तरह के होते हैं। ओके, तो वन कैन बी वर्किंग प्रोटोटाइप। ओके, जो वाकई में काम कर रहा हो, छोटा आपने कुछ टॉय टाइप का बना दिया, वर्किंग दिखा रहा है। ओके, देन सेकंड प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रोटोटाइप, वो क्या बता रहा है कि वो वेरीफाई कर रहा है कि ये जो डिज़ाइन है और उसके जो फंक्शंस हैं उसमें से की फंक्शंस ऐसे काम करेंगे। ओके, तो ये वर्किंग भी हो सकता है जो आप लोग समझते हो हमेशा, और पीओसी के स्टेज पे भी हो सकता है, बीच का स्टेज पे। देन यू कैन हैव ए विजुअल प्रोटोटाइप। ओके, आप कुछ पीपीटी के थ्रू, कुछ कार्डबोर्ड के थ्रू, कुछ फंक्शंस या अपीयरेंस कैसे आएंगे वो आप दिखा सकते हो। ओके, देन यूज़र एक्सपीरियंस प्रोटोटाइप। ओके, ये आपको मैंने अभी बताया कि यूज़र एक्सपीरियंस कैसे करेगा। आपने ये क्लिक किया एटीएम में, देन सेविंग अकाउंट आएगा, फिर पिन आएगा, तो इसको आपने कितने अच्छे तरीके से बताया है।
तो यूज़र एक्सपीरियंस करके उसको देख सकता है। वो एक्चुअल नहीं बनाए बट वो यूज़र एक्सपीरियंस के लिए बनाया आपने, फाइन। देन अगेन फंक्शनल प्रोटोटाइप, ये पूरे मैक्सिमम फंक्शंस इसमें काम कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। देन देयर इज अ पेपर प्रोटोटाइप, आप पेपर पे कुछ उसको बना के बता सकते हो, ओरिगेमी टाइप का आप बना सकते हो, ओके। और पेपर प्रोटोटाइप में नॉर्मली जो सॉफ्टवेयर्स हैं, डिज़ाइन है, वो आप पूरा उसमें बता सकते हो, ओके। कोडिंग करा हुआ है, बीटा वर्जन है, तो ये इतने तरह के प्रोटोटाइप। अब क्यों बना रहे हैं प्रोटोटाइप पीओसी के बाद? बिकॉज इससे पहले कि हम बहुत सारा इन्वेस्ट कर दें, गलतियां हो, तो जो इन्वेंटर्स और रिसर्चर्स हैं वो बता सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स कौन कौन से आने वाली है पहले ही। प्रोटोटाइप में हम देख के बता देंगे कि कौन सी डिज़ाइन की प्रॉब्लम आ रही है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉब्लम आ रही है, मटेरियल की प्रॉब्लम आ रही है, तो दिस इज़ वेरी इजी टू एस्टिमेट अर्ली, ओके। फिर मैन्युफैक्चरिंग टाइम, कॉस्ट, ये सब चीज़ें जो हैं ये भी हमें शुरू में पता लग जाती हैं ताकि हम उसकी फाइनल प्राइस बना सकें, बता सकें, सेल प्राइस जो होती है, फाइन। और इसके लिए कौन कौन सी मशीन्स लगेगी, ओके। अभी मुझे एक बकेट बनवाना था कोनिकल, एक जो पेटेंट मैंने बताया था आपको, तो उसको मैं एक इंडस्ट्री में लेके गया ड्राइंग, तो बोलते सर हमारे पास इसके लिए इक्विपमेंट नहीं है, वी डोंट हैव दैट बेंडिंग मशीन। वो पूरा बेंड इतना नहीं करेगी, वो सेमी सर्कुलर कर देगी, पूरा नहीं करेगी। तो जब आप प्रोटोटाइप बनाते हो तो आपको पता लगता है कि जब हम मास प्रोडक्शन करेंगे तो कौन कौन से इक्विपमेंट्स, मशीनरी लगेगी हमें, ओके। तो वो सारी टेस्टिंग प्रोटोटाइप पे हो जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन जब आप प्रोटोटाइप को दिखाते हो तो यू कैन गेट द फीडबैक ऑल्सो, ओके। और उस फीडबैक के थ्रू आप इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि प्रोटोटाइप को देख के इन्वेस्टर को समझ में आया था कि ये बनेगा और वो पहले से ही उसको फंडिंग करेगा, जो बहुत ज़रूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप सीधे प्रोडक्शन करने जाओगे, डेट विल बी वेरी कॉस्टली अफेयर, स्पेशली फॉर प्रोडक्ट्स, ओके। सर्विसेज ठीक है, तो ये बहुत बड़ा टूल है इन्वेस्टर्स को परसुएट करने का, ओके। देन अगेन ये बताएगा कि जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअल कैसे दिखने वाला है, ओके। आइडिया तो है आपके पास बट मेन प्रोडक्ट नहीं है, तो प्रोटोटाइप जो है वो उसका फाइनल डिज़ाइन और फंक्शन का हिंट दे देता है हमें, ओके। एंड अल्टीमेटली यू सेव अ लॉट ऑफ मनी। जब तक आप प्रोटोटाइप नहीं बना रहे तो अमाउंट कम लगेगा। देन अच्छा प्रोटोटाइप बना, आपने कन्विंस कर दिया, यू गेट द इन्वेस्टर्स, आपने उसको वैलिडेट किया, देन यू कैन गेट द फाइनल प्रोडक्ट। तो आगे बनने के बाद कुछ गड़बड़ हो उससे पहले हम अभी प्रोटोटाइप स्टेज में देख लेते हैं। डन। अब ये प्रोटोटाइप समझ लिया आपने क्या है। नाउ हाउ टू टेस्ट इट, ओके। सो टेस्टिंग इज नथिंग बट शेयरिंग प्रोटोटाइप्स, ओके। आप उस प्रोटोटाइप को क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, ओके, ताकि उसकी वायबिलिटी, उसकी डिज़ाइन को हम देख सकें, ओके। सो टेस्टिंग क्यों करते हैं, तो उसके पहले हमें कैसे करना है वो पता होना चाहिए। सो एक्चुअली जब आपने प्रोटोटाइप बनाया तो आपको पहले क्लियर पता होना चाहिए कि इसकी टेस्टिंग में कैसे करने वाला हूँ, ओके, फाइन। टेस्टिंग यहाँ पर मैकेनिकल टेस्टिंग, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग वैसी नहीं है। इट कैन बी फीडबैक्स, इट कैन बी सम फंक्शंस, ओके, सम चेंजेस। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि मैं इसमें क्या टेस्ट करने जा रहा हूँ, ओके। फॉर एग्जांपल आप एक बाइक लेके जा रहे हैं, आप उसका माइलेज टेस्ट करना चाह रहे हैं या आप उसका एक्सेलरेशन टेस्ट करना चाह रहे हैं, ओके। टेस्टिंग किसकी हो रही है, रेस कैसे दोगे आप, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं इस बाइक में क्या टेस्ट कर रहा हूँ। ऐसे ही इस प्रोटोटाइप में यू शुड बी क्लियर गोल फॉर टेस्टिंग, ओके। और आपको टेस्ट जल्दी भी करना है और नंबर ऑफ टाइम्स करना है, ऐसा नहीं एक बार कर दिया आपने, क्योंकि प्रोटोटाइप को रीडिज़ाइन करना आसान है, फिनिश प्रोडक्ट को करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। मशीन्स चेंज करनी पड़ सकती हैं, मटेरियल ह्यूज लॉस, और टेस्टिंग कंटिन्यूसली रहनी चाहिए। ऑफन ऐसा नहीं कि एक बार किया, यू शुड कीप ऑन टेस्टिंग। देखा, फीडबैक लिया, चेंज किया, ओके। और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको आप आइडियाज़ देने को बोलो, कंट्रीब्यूट करने को बोलो, ओके, डन। और आप उनको एनकरेज करो कि इसमें और क्या चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको लास्ट में दिख रहा है, आई लाइक, आई विश, व्हाट इफ, अगर ऐसा होता तो, अगर ऐसा कर, मेरी इच्छा ये है, इस बाइक में ये होता, ओके। तो आप उनसे जब पूछेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि ओके मैंने बना तो दिया है बट ये फीचर मिसिंग है जिसको ऑडियंस, पार्टिसिपेंट्स और कस्टमर्स जो हैं, एंड यूज़र, वो चाहेंगे, ओके। तो ये टेस्टिंग करना जरूरी है।
सबसे इंपॉर्टेंट, यू हैव टू टेस्ट विद द राइट पीपल। ऐसा नहीं कि आपको टेस्टिंग कुछ बाइक का करना है और आप विलेजर्स में जा रहे हो। ओके, विलेजर्स में अगर आप ट्रैक्टर के कुछ कंपोनेंट्स का टेस्टिंग के लिए जाओ समझ में आता है। ओके, एंड ट्रैक्टर की टेस्टिंग के लिए आप अपर मिडिल क्लास, ओके, उन पे जाओगे, एफ्लुएंट क्लास, तो वो गलत है। तो आपको राइट पीपल के साथ में टेस्टिंग करनी है, क्योंकि वही आपको वैल्यूएबल इंसाइट दे पाएंगे। ओके, और थंब रूल क्या है, जो उसको एंड यूजर बनने वाला है, ओके, या तो वो एंड यूजर बन रहा है उसका, उससे टेस्ट कराओ, या वो एक्सपर्ट है उस फील्ड का। सो यू हैव टू टेस्ट विद द राइट पीपल, नंबर वन, who can be end users और वो आर एक्सपर्ट्स इन द फील्ड। ओके, अगला जो आपको पॉइंट है कि यू हैव टू बी न्यूट्रल वाइल प्रेजेंटिंग योर आइडियाज। एक्चुअली क्या होता है, हर किसी को अपना आइडिया बड़ा अच्छा लगता है, तो आप बायस्ड हो जाते हो उनको बताने में कि नहीं नहीं नहीं, सुनोगे भी नहीं आप। तो आपको अपना आइडिया उनको बेचना नहीं है, आपको न्यूट्रल होके कमेंट सुनने हैं। ओके, क्योंकि यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग बोथ आर अबाउट फाइंडिंग वेज टू इम्प्रूव योर आइडिया। आपको आइडिया पे चिपके नहीं रहना है, उसको सेल नहीं करना है, उससे फैसिनेट नहीं होना है, आपको उसको इम्प्रूव करना है। कहाँ से करोगे? राइट पीपल से, उनके फीडबैक से, उनके कमेंट्स से, उनकी इच्छा से कि क्या चाहते हैं वो। ओके, एंड यू शुड बी ओपन माइंडेड। समटाइम्स वी आर डाउन इन मोरल बाय हियरिंग द नेगेटिव फीडबैक। ये क्या है, ऐसा बोल दिया, तो हम थोड़े से, सो यू शुड बी वेरी ओपन माइंडेड, क्योंकि आपका आइडिया आपको प्रिय है, बट जो कस्टमर चाह रहा है उससे कमेंट लेना जरूरी है, तो आपको ओपन माइंड होना बहुत जरूरी है। फाइन, देन आपको जो लिमिटेशंस है उसको कम्युनिकेट करना आना चाहिए, आपकी टीम को कम्युनिकेट करना आना चाहिए, क्योंकि प्रोटोटाइप की टेस्टिंग में अगर आपने लिमिटेशंस को कम्युनिकेट करके प्रॉपर इनकॉर्पोरेट नहीं किया तो मतलब नहीं रहेगा वो। ओके, so you should be testing it in a focused manner, incorporating all the limitations, all the feedbacks, फिर आप टेस्ट करो उसको। और लास्ट में आपको लिखा है इटरेट, ऐसा नहीं एक बार पूछा और हो गया। अगेन यू गो आस्क द एक्सपर्ट्स, आस्क द राइट पीपल, नाउ व्हाट यू से। ओके, सो ऑलवेज दिस प्रोसेस इज इटरेटिव, रिपीटेटिव होती है। देन नाउ वैलिडेशन। ओके, जो हमें वैलिडेट करना है, तो वैलिडेशन इज नथिंग, आपका आइडिया से आप जो बनाने जा रहे हो, इज इट द राइट प्रोडक्ट। ओके, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आइडिया जैसे मैंने कहा सबको प्रिय होता है। स्टार्टअप हर किसी को लगता है हम स्टार्टअप डाल दें, ओके, चालू कर दें। ओके, फाइन, तो वैलिडेशन क्यों करना है? बिकॉज जब आप नया प्रोडक्ट बनाते हो तो बाय डेफिनेशन यू आर मेकिंग अजम्पशंस। ओके, समटाइम्स अ लॉट ऑफ देम। आप कुछ अज्यूम करके बनाते हो कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। ओके, डन। तो उस अजम्पशंस को आपको देखना पड़ेगा कि ये सही है कि नहीं, तुक्का नहीं मारना है। तो आपके की हाइपोथेसिस है, अजम्पशंस हैं, उनको आपको जितनी जल्दी हो सके वैलिडेट करना है। ये चीज़ ऐसे काम करेगी, ये चीज़ ऐसे काम करना चाहिए, इसको आपको चेक करना है। तो दैट इज द वैलिडेशन। ओके, बट सम ऑफ योर assumptions may go wrong। ओके, बट अगर वो सिग्निफिकेंट नहीं है तो चलेगा, बट अगर वो सिग्निफिकेंट assumptions थे जो गलत हो गए, देन आपको रिवर्स जाना पड़ेगा। ओके, यू हैव टू शिफ्ट द गियर, बैक गियर लगेगा, रिवर्स गियर लगेगा। फाइन, अब देखिए वैलिडेशन जो है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इट विल हेल्प यू अबाउट द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ऑफ ऑल। क्या? द टाइम एंड मनी स्पेंट ऑन समथिंग विच इज ऑफ नो यूज, ओके, विच नो बडी वॉन्ट्स। आप अननेसेसरी उस पर टाइम भी लगा रहे हो, महीने लगा दिए, कुछ बना दिया, पैसा लगाया, और उसको कोई चाह नहीं रहा है। सो ये आपको अवॉइड करने के लिए वैलिडेशन काम आता है। ओके, एंड अगर आपने कोई फेल प्रोडक्ट देखा होगा, इफ़ यू एवर कम अक्रॉस अ फेल प्रोडक्ट, इसके पूरे चांसेस हैं कि वो जो आइडिया है उस फाउंडर को बड़ा फैसिनेट किया होगा, उसको कूल और इंटरेस्टिंग लगता होगा बस, बट वो रियल पेन पॉइंट या रियल पीपल को मदद नहीं कर रहा है। तो जो भी स्टार्टअप्स या आइडिया फेल होते हैं, उसका सबसे प्रमुख कारण है दैट आइडिया इज
वेरी वेरी क्लोज टू द आइडियट्स हार्ट, ओके, वो वैलिडेट नहीं कर रहा उसको या करना ही नहीं चाह रहा, बिकॉज मेरा आइडिया मुझे प्रिय है. कोई बोलता है तो वी बिकम ओके रिपल्सिव, ओके, वी स्टार्ट काउंटरिंग इट, ओके, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं. सो ये वैलिडेशन करना बहुत ज़रूरी है इसलिए. ओके, अगेन जब आप वैलिडेट करते हैं तो इट फोर्सेस यू, आप चाहो ना चाहो, टू गेट इन टच विथ योर यूजर्स. It's not like that, dear students, that you are sitting in a room, your spare room in your house or your friend's house or in an incubator, and you are doing something fancy. You have to get in touch with the users. तो वैलिडेशन के लिए आपको फोर्सफुली उनके पास जाना पड़ेगा. ओके, एंड इससे फ़ायदा क्या है कि आप ऐसा प्रोडक्ट बनाएं कि जो पेन है, लॉस ऑफ टाइम है, उससे आप बच जाओगे. ओके, फाइन. एंड इफ़ यू फिगर आउट दैट यू आर हेडेड डाउन द रॉन्ग पाथ, आपको पता लग गया कि ये सही नहीं है, तो आप चीपर और इजी तरीके से अपना रास्ता बदल सकते हो. सो इट्स वेरी इजी एंड चीपर टू चेंज द कोर्स सूनर रादर देन लेटर. ओके, फाइन. एंड अल्टीमेटली यू कैन पिवोट, आप अपना पिवोटिंग कर सकते हो कि हाँ यही रहेगा बट इसमें चेंजेस करना है. ओके, सो आइडिया कैन नॉट बी रूल्ड आउट कम्प्लीटली, बट बाय वैलिडेटिंग यू कैन डू द पिवटिंग. ओके, इतना तो है ही, अब मुझे चेंज करना है. डन. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वैलिडेशन. एंड obviously once you test and validate, it will further refine your ideas. Okay, for example एक रेसिंग बाइक है या एक अच्छी बाइक मार्केट में आ रही है, तो कॉस्ट छोड़ दें, तो उसके फीचर्स, हाउ यू आर सेटिंग, एक और आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है. आप यंग स्टूडेंट्स ने देखा होगा, बहुत सारी बाइक्स हैं ऐसी जिसमें सिंगल सीट होती है, वो भी एकदम गड्ढे के अंदर. सो उसमें जो दूसरा आपका साथी बैठता है उसके लिए प्रॉब्लम होती है. फाइन, वो या तो बहुत ऊपर बैठा होता है या दूर बैठा होता है. सो अनलेस अनटिल यू validate that idea, design of the bike seating arrangement or the bike design, तो आपको refine नहीं हो पाएगा वो. Okay, fine. So and lastly, सबसे important, ये बताएगा आपको कि लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, because it's very easy to produce and manufacture, but it's very tough to sell it out. तो बायर्स आपके प्रोडक्ट को, जो आइडिया आप नया लाए हो, उससे वो खरीदेंगे कि नहीं, एज सिंपल एज दैट. सो इट विल हेल्प यू फिगर आउट इफ द पीपल विल बाय योर प्रोडक्ट और नॉट बिफोर यू बिल्ड इट. पता लगा आपने बना के रख दिया, बॉक्सेस भर गए पूरे, 500 पीसेस बना दिए, बट देयर आर नो टेकर्स, तो दैट विल बी अ डूम. सो दिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग. अभी कौन कौन से वैलिडेशन होते हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस खुद से पूछने हैं कि विच टारगेट मार्केट आई वांट टू एड्रेस एंड व्हाट इज द मार्केट साइज. ओके, आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिसका टारगेट मार्केट इधर ही. फॉर एग्जांपल इन दिस रीजन वी हैव वेरी फेमस दैट नमकीन, वी से सेम मिक्सचर. सो इफ यू गो डाउन नॉर्थ ईस्ट, ओके, और इवन इन सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र और डाउन साउथ, तो वहाँ पर ये नमकीन चलेगा कि नहीं. ओके, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको. सो टारगेट मार्केट आपको पता होना चाहिए. ओके, एमपी या सेंट्रल पार्ट है या साउथ है या पूरा ओके एशियन मार्केट है, तो आपको पता लगेगा. एंड अल्टीमेटली विच इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम द पीपल इन दिस टारगेट मार्केट दे आर फेसिंग. ओके, और व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम. ये सब चीज़ें आपको पता लगेंगी. और अल्टीमेटली जो आपको पता है, आर देयर रियल पीपल विलिंग टू पे फॉर सच अ प्रोडक्ट. कोई लोग हैं ऐसा अस्तित्व में जो उसको आप प्रोडक्ट दोगे तो वो खरीदेंगे. तो एक तो होगी प्रॉब्लम, दूसरा हो गया आप इसको सॉल्व कर रहे हो, तीसरा जिस तरीके से सॉल्व कर रहे हो उसको कोई खरीदने वाला है कि नहीं. ओके, ऐसे ही ठीक है, आइडिया था, प्रोडक्ट था, अच्छा भी है, बट शैल आई गो फॉर प्रोडक्शन. ओके, उसको बनाने में कुछ सेंस है या उसका मार्केट इतना बड़ा है कि मैं इसको बनाऊं, मास प्रोड्यूस कर दूं, या मेरे प्रॉफिट मार्जिन, और जो मैंने शुरू में लिखा था कि एम आई बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट. ओके, मुझे पानी के लिए बॉटल चाहिए जो स्कूल में सब रख के कॉलेज में लेके जाएं.
So I cannot have a glass kind of thing which is open at the top. I cannot have a bulky thing, conical thing, common sense. तो आप जो राइट प्रोडक्ट है वो बना रहे हैं कि नहीं, ये वैलिडेशन बता देता है। ओके, अब देखिए किस तरह से वैलिडेट करना है। सो यू वैलिडेट द मार्केट, जहाँ पर आप चाह रहे हो, तो इतने सारे आइडियाज़ जा रहे हैं, आप देख रहे हो, तो मार्केट से कुछ ड्रॉप हो गए। देन यू वैलिडेट द प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम को आप एड्रेस करना चाह रहे हो वो एड्रेस हो रही कि नहीं उससे, अदरवाइज अगेन देयर इज अ ड्रॉप, वो आइडिया ड्रॉप हो जाएगा। फिर जो प्रोडक्ट आप लेके जा रहे हो उसके यूजर्स हैं कि नहीं हैं, अगर वो भी नहीं है तो प्रोडक्ट ड्रॉप होगा। अदरवाइज सक्सेस कब मिलेगी, जब वो तीनों बैरियर से वो यस होके निकला है, देन ओनली यू कैन थिंक ऑफ प्रोड्यूसिंग इट। ओके, और अभी भी टाइम है आगे, इतना आसान नहीं है। सो क्विकली वी विल सी वंस व्हाट इज वैलिडेटिंग द मार्केट, क्योंकि आपको स्टार्टअप बनाना है अल्टीमेटली। सो व्हाट इज द योर टोटल मार्केट पोटेंशियल, आप कोई प्रोडक्ट लेके आए हो, फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस पेपर वेट ऑफ सम डिज़ाइन, सो वो विल बाय इट, कौन कौन बाय करेगा। ओके, टीचिंग में करेंगे, नो बडी विल बाय इन गैराजेस, ओके, और सम शॉप्स, कपड़ा वाली शॉप में। ओके, सो और फॉर दैट मैटर स्टेपलर है। सो यू आर हैविंग सम इनोवेटिव डिज़ाइन, बट व्हाट इज द टोटल मार्केट पोटेंशियल, ओके, एंड हाउ मच ऑफ दैट मार्केट यू आर गोइंग टू कैप्चर, ये हमें पता होना चाहिए। यू कैनॉट कैप्चर ऑल द मार्केट, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो आपको उस टोटल मार्केट में पोटेंशियल जो खरीदने वाले हैं उसमें से कितना परसेंट, 10%, 20%, 40% आप कैप्चर करने वाले हो, ये बताता है। कैसे होता है, इसको देखने के लिए जो मेथोलॉजीज हैं उसमें जो कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर हैं बहुत यूनिक आइडिया तो बात अलग है, तो आप उनके वेबसाइट पे ट्रैफिक देखिए। कुछ ये वेबसाइट्स मैंने बता रखी हैं, कॉमस्कोर, कॉम्पीट, उससे जाके आप देखिए। और अगर आपको लग रहा है कि कोई कॉम्पिटिटर के पास बहुत सारे यूज़र्स हैं, आप देखते हैं ना यूट्यूब में इतने सब्सक्राइबर्स हैं, ओके, कोई कुकिंग की क्लास आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, देखना चाह रहे हो, तो आप देखते हो, फॉर एग्जांपल निशा मधुलिका, सो यू हैव सो मेनी मिलियंस सब्सक्राइबर, तो आपको लगता है हाँ ये अच्छा है। तो इसी तरह से अगर कोई 1 मिलियन विजिटर्स हैं किसी के पास, तो आपको समझ में आएगा कि ये मार्केट पोटेंशियल है, कोई तो है, आप अलग कर रहे हो, बट लोग हैं खरीदने वाले, मार्केट साइज। आप कितना टैप करोगे वो बात की बात। देन यू हैव गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर ऑल्सो, ओके, तो ये आपको बताता है कि इस प्रोडक्ट को सर्च करके कितने लोगों ने देखा। देन सिमिलरली गूगल ट्रेंड्स करके भी एक है जो आपको बताएगा कि कितनी सर्च क्वेरी हुई है, फॉर एग्जांपल मास्क या पल्स ऑक्सीमीटर, तो कितना ट्रेंड था उसका जनरेट। ओके, अभी देखा आपने 1.5 साल में बहुत सर्च हुआ है। सो दीज आर द मार्केट वैलिडेटिंग टूल्स एंड मेथडोलॉजी। ओके, फिर एक और है कि आप कॉम्पिटिटर अगर कोई है, आपका प्रोडक्ट थोड़ा अलग है जो आप बनाना चाह रहे हो, बट कोई रिलेटेड कॉम्पिटिटर है, वो क्या दे रहा है, ओके, उसके प्राइस, उसके रेवेन्यू नंबर्स आपको मिलते हैं अगर किसी वेबसाइट से, उनकी कंपनी के साइट से या कुछ गवर्नमेंट साइट से, तो आपको देखिए, तो आपको इससे मार्केट साइज भी पता लगेगा और आप कितना टैप कर सकते हो पता लगेगा। फाइन, सो दिस हाउ यू आर गोइंग टू वैलिडेट द मार्केट। सेकेंड है वैलिडेटिंग द प्रॉब्लम। ओके, प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, आपने जो चूज़ करी हैं, तो आप पहले अपने दोस्तों के पास, फैमिली, रैंडम स्ट्रेंजर्स के पास जाइए, गो आउट, स्टार्ट टॉकिंग टू देम। ओके, यहाँ आपको थोड़ा सा ओके प्रोएक्टिव, ओपन माइंडेड, एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा। तो आप उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो कि आपको क्या लगता है कि ये प्रॉब्लम है, ओके, या आपको ये पेन लग रहा है। फॉर एग्जांपल कॉलेज बस में कांच जो ग्लास हैं विंडो में, उनकी आवाज़ बहुत आती होगी, कोई पुरानी बस है, ओके, या चढ़ते वक्त हमेशा कुछ लगता होगा आपको, ओके, सीट में हमेशा कुछ ना कुछ कील निकलता होगा। सो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, आई एम गिविंग एग्जाम्पल, जो आप उनसे पूछ सकते हो कि आर दे एक्सपीरियंसिंग सम प्रॉब्लम, क्या है वो। फिर आप कुछ पैटर्न्स देखिए, ओके, तो ग्रुप ऑफ पीपल बिहेविंग इन सेम पर्टिकुलर मैनर, वो आपको पता लग सकता है कि ये क्या हो रहा है। डन, वो किसी एक चीज़ की कंप्लेन कर रहे हैं, ओके, या अलग अलग कंप्लेंट्स हैं उनकी, और वो जुगाड़ करके आज तो उन्होंने सॉल्व कर लिया, उसको काम चला लिया, बट आपको एक अपॉर्चुनिटी है उनके पास कि उसको आप हमेशा के लिए रिजॉल्व कर दो। ओके, सो आप पैटर्न्स देखिए। देन
जब आप बना रहे हैं प्रोडक्ट तो बिल्डिंग द प्रोडक्ट एंड वैलिडेटिंग इट्स अ हैंड इन हैंड प्रोसेस, ये दोनों साथ में चलती हैं। आप ऑब्जर्व कर रहे हो, रोज पूछा, उसको बनाते जा रहे हो, वैलिडेट करते जा रहे हो। ओके, तो इस तरह से आप आगे बढ़ते हो, प्रोडक्ट को बढ़ाते जाते हो। और फाइनल स्टेप जो है प्रोडक्ट की, वो डिमांड और प्रॉब्लम को करने वाले आप करने के बाद आएगी। फिर से बताएं आपको, आपने पहले मार्केट को वैलिडेट किया, प्रॉब्लम को किया, और लास्ट स्टेज में आप प्रोडक्ट को करने वाले हो। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स इधर थी, अब आप प्रोडक्ट को कर रहे हो वैलिडेट। सो दिस इज द फाइनल स्टेप। अगर आपने प्रोडक्ट को वैलिडेट कर दिया तो फिर वो सक्सेस हो गया। फाइन। अब इसमें आपको कंटिन्यूसली पूछना है, दिन रात अपने आप से पूछना है, डज दिस प्रोडक्ट रियली सॉल्व द प्रॉब्लम? ये जो मेरा आइडिया से मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, क्या ये रियली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और उस मार्केट में कर रहा है कि नहीं जो मैंने आइडेंटिफाई किया है। फाइन। आप यहाँ बैठ के यूएसए की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हो। डन। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन। एंड अगर आपने ये आइडिया को वैलिडेट कर दिया और आपने इस प्रोडक्ट को वैलिडेट कर दिया तो फिर आपका काम आसान होगा आगे बढ़ने का। फाइन। सो क्योंकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, एंड हाउ योर प्रोडक्ट इज गोइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट उस मार्केट में। ओके, कीप इन माइंड प्रॉब्लम, पेन्स, इनको सॉल्व करने के लिए आपका प्रोडक्ट और उस मार्केट में, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन एक तरीका जो है प्रोडक्ट को वैलिडेट करने का, जो आपको पहले बताया था मैंने, यू कैन हैव ए सेमी फंक्शनल प्रोटोटाइप। ओके, पूरा नहीं बना बट विच कैन गिव यू द लुक और फील लाइक अ फाइनल प्रोडक्ट। तो आप ये ऐसा सेमी प्रोडक्ट लेके आप लोगों से ओपिनियन ले सकते हो। ओके, फाइन। और उनसे आप प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हो, वो आपको आइडिया देंगे। गॉट इट? सो दिस इज हाउ यू वैलिडेट द प्रोडक्ट। ये एक तरीका बताया हुआ है इसमें। आप प्रॉब्लम को आपने देखा, फिर आइडिया बनाया, देन प्रोटोटाइप किया, फिर डिज़ाइन किया, फिर प्रोडक्ट, फिर वैलिडेटेड प्रोडक्ट आएगा। ओके, सो इट्स अ इटरेटिव प्रोसेस। ओके, फाइन। तो मार्केट, प्रॉब्लम और प्रोडक्ट तीनों वैलिडेट होना जरूरी है। डन। अबव ऑल देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लीन अप्रोच नाउअडेज, और इंडिया में जो हम इकोनॉमिकली बहुत चीज़ें बचा लेते हैं। सो द लीन अप्रोच इज पर्सनली आई एम सजेस्टिंग टू यू, देयर इज अ बुक द लीन स्टार्टअप, आप पढ़िएगा उसको। तो इसमें ये बताता है देयर आर 4 स्टेजेस। यू वैलिडेट द प्रॉब्लम, जो मैंने आपको बताया, यू वैलिडेट द मार्केट, जो भी हमने देखा, यू वैलिडेट द प्रोडक्ट, बट ऑल्सो यू वैलिडेट द विलिंगनेस टू पे। ओके, कोई भी एक पेन है 10 रुपए का है, बट अगर आप उसको 12 रुपए में मिल रहा है तो लोग नहीं लेंगे। ओके, अनलेस अनटिल कुछ बहुत अलग हो। तो यू हैव टू वैलिडेट द विलिंगनेस टू पे। ओके, सो इन सम schools you will be asked to go for this also. Okay, fine. And if your idea, your prototype meets all these 4 validation criteria, then you can go to the product development thing. Okay, आप प्रोडक्ट को डेवलप करिए, रिफाइन करिए, इन्वेस्टर्स मिलेंगे आपको, हम आगे देखते हैं अभी। फाइन। सो दिस इज हाउ यू वैलिडेट। फाइन। नेक्स्ट इज, दिस इज द रियल वर्ल्ड। ओके, योर प्लान सीम स्मूथ, आराम से जाएंगे, but actually there are lot many ups and downs. Okay, so you think that if I build something everyone will use it, and if I build it everyone will use it immediately. मैं तो बनाऊंगा और लोग तैयार बैठे हैं, ऐसा नहीं होता है। ओके, और उसको सही तरीके से यूज भी करना उनको आएगा, everyone will use it effectively. Okay, so this will be the wrong conception. Okay, so इसलिए वैलिडेट करना जरूरी है। Got it? Again, कुछ वैलिडेट करने के लिए देर आर मैनी कॉम्पिटिशन एंड चैलेंजेस। ओके, जरूरी नहीं आप वैलिडेट करने। नाउ गवर्नमेंट, ऑल कॉर्पोरेट, सम कॉलेजेस लाइक योर्स, दे आर हैविंग सम कॉम्पिटिशंस। तो स्टार्टअप इंडिया चैलेंज में जाइए आप, स्वच्छ भारत चैलेंज, आत्मनिर्भर, कोविड के चैलेंजेस हैं, हैकेथॉन्स हैं। सो दिस इज अनदर वे टू वैलिडेट योर आइडिया और प्रोडक्ट। डन। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो वैलिडेशन के लिए टूल्स तो हैं, बट दीज आर सम ready-made competitions and hackathons. Now ultimately you have to convert. Validate हो गया, but now you want to convert. So conversion is you are converting your ideation, idea, product, validated product to
स्टार्टअप। तो कन्वर्जन में आपको सबसे पहले चाहिए फंड रेजिंग। अगर कोई यूनिक आइडिया है तो आप पेटेंट फाइल करिए। ओके, कॉन्सेप्ट को सेल करना आना चाहिए, लाइसेंस करना आना चाहिए आपको अगर कुछ ऐसा प्रोडक्ट है। देन एरर्स को रेक्टिफाई करके उसको रिप्रेजेंट करिए। फाइनलाइज द डिज़ाइन, सारी चीज़ें आपकी, फाइनल प्रोडक्ट, उसकी डिटेल्स, बिल ऑफ मटेरियल, स्पेसिफिकेशंस, पिचिंग आपको अगर करना है फंडिंग के लिए, ये सब चीज़ें कन्वर्जन में काम आती हैं। ओके, फाइन। So it is recommended that you design a simple mock-up. Okay, if you are having a software prototype, physical prototype, digital prototype, okay, you have a small sample, okay, and you mock up something, and you can present anytime to investors or in any competitions. They prefer. Okay, खाली बोलने से नहीं होता. If you can demonstrate something, so that will help a lot. Fine. Then whatever you are offering, you can create a small scale version. Okay, fine. Scale down version जो होता है वो आप बना के आप बता सकते हैं, तो मिनी वर्जन्स, तो इससे they can interact with that product and they can give you more idea and you can gain more ideas and you can refine more. तो कन्वर्जन के समय आप छोटा अगर बना सकते हो, ऐसा आइडियली कहा जाता है, आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर, दैट अ कॉस्ट ऑफ प्रोटोटाइप इज 5 times दैट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्ट। ओके, जो प्रोटोटाइप बनता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी ना, आपको टाइम लगेगा, बट उसको वैलिडेट करना है, बट एक बार प्रोडक्ट बनाओगे आप, देन इट विल बी चीपर, मास प्रोडक्शन। तो स्मॉल स्केल वर्जन बना सकते हो। आई मेंशन ऑलरेडी, हैकाथॉन्स आर अ लो रिस्क अपॉर्चुनिटी। ओके, आपको क्या करना है वहाँ पर, अर्ली स्टेज स्टार्टअप जो है वहाँ अपना आइडिया प्रेजेंट करो। इफ़ यू आर इन टॉप 5, टॉप 10, टॉप विनर, देन योर आइडिया इज ओके ऑब्वियसली वैलिडेटेड, क्योंकि इतने लोग, इतने ज्यूरी होंगी, इतने सारे आइडियाज़ में। ओके, देन यू कैन मेक ए लैंडिंग ऑल्सो। लैंडिंग हेयर मीन्स आप कुछ वीडियोस बनाइए, कुछ टीजर्स जो लिखे हैं, ओके, कुछ सोशल मीडिया पे आपका उस पर रिलेटेड टेक्निकल ब्लॉग चल रहा है, सो यू शो योर प्रेजेंस दैट दिस आइडिया इज व्हाट इज गोइंग टू बी सॉल्विंग। ओके, और बीटा वर्जन जो है ना आपका लो प्रोडक्शन, लो बजट जो है, आप बीटा वर्जन कुछ सॉफ्टवेयर अगर है तो आप बना सकते हो। देन सो दिस इज स्टेज फॉर कन्वर्टिंग। अब कन्वर्जन में फंड रेजिंग भी चाहिए। ओके, देन इफ यू आर सफिशिएंट, ओके, मनी वाइज, देन इट्स ओके, सेल्फ सफिशिएंट, बट कितना चाहिए, कब आप रिटर्न करोगे, इन्वेस्टमेंट कब होगा, कहाँ से लेना है आपको, बैंक से लेना है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से लेना है, ओके, वीसीज, वेंचर कैपिटलिस्ट लेना है, एंजल इन्वेस्टर्स, तो आपको कब कब फंड लगेगा, कितना लगेगा, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए वैलिडेट करने के बाद। तो उसमें पहला आता है टेस्टिंग फेज। टेस्टिंग के दौरान यू कैन गो फॉर ओके सम टेक्निकल कॉस्ट, सम सप्लाई कॉस्ट, प्रोसेस कॉस्ट, कुछ इंस्पेक्शन करने के लिए कॉस्ट लगेगी आपको। ओके, तो ये चीज़ें आपको इस समय काम आएगा, तो आपको फंड यहाँ के लिए भी चाहिए। ओके, देन जब आप प्रोडक्शन में स्टार्ट करना चाहोगे, स्टार्टअप के पहले स्टार्ट कर रहे हो, सो इमीडिएटली यू कैन हेड फॉर प्रोडक्शन। तो आपको कितना कॉस्ट आएगा, रॉ मटेरियल का, मैन मटेरियल, मशीन, ओके, क्वालिटी चेक, पावर, ओके, ब्रेक डाउन के समय, मेंटेनेंस के समय, ओके, सो ये सारी कॉस्ट आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो ये इन्वेस्टर्स पूछ भी लेते हैं ये कि आप कितना फंड लेना चाह रहे हो, योर आइडिया इज वैलिडेटेड, नाउ यू वांट टू कन्वर्ट, so you should factor all these things. Okay, similarly post production में क्वालिटी चेक करोगे, पैकेजिंग, ओके, स्टोरेज करोगे आप, ओके, you can give for warehouses, okay, fine, distribution, then sales marketing plan भी आपके रहेंगे, उसमें कितनी कॉस्ट आएगी। so this is regarding the fund what you will be requiring for conversion. okay, and ultimately you cannot be stagnant, तो आप अगला ग्रोथ करोगे। यू कैन हैव अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल, ओके, अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं, कलर्स आ रहे हैं, ओके, फीचर्स आ रहे हैं। ओके, सिंपल फैन में भी अगर इतने फीचर्स आते हैं, तो आप ग्रोथ और डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको फंड्स चाहिए। सो ये चीज़ें सारी आपको दिमाग पर रखनी है। ओके, देन व्हेन यू विल बी ब्रेकिंग इवन, आपको कब जाके आपको लग रहा है कि मेरा सारा कॉस्ट जो है वो निकल आएगा बाहर। ओके, देन प्रॉफिटेबिलिटी आपकी क्या रहेगी, व्हाट विल बी द रेवेन्यूज, व्हाट विल बी द प्रॉफिट मार्जिन्स, ओके,
तो ये सारी चीज़ें कन्वर्जन के लिए आपको सोच कर रखनी होती हैं. यू हैव टू प्लान इट इन एडवांस. ओके, सो आइडिया, प्रोटोटाइप, वैलिडेशन, कन्वर्जन. ओके, फाइन. Then again there are some challenges because initially your prototype is made with limited resources, so it cannot be as finished product. Okay, it will not be working like a industry product. So there are challenges. You have limited manpower also. There can be chances of error also. You cannot technically check the various parameters unless until you have some testing machines, which can come only after investors have invested. आपको इन्वेस्टर्स जब तक नहीं मिलेंगे, आपके आइडिया को देख के वो अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो आपके पास अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं होंगे टेस्टिंग करने के लिए. तो प्रोटोटाइप ठीक है, मिनिमम फंक्शंस, बट सही में टेस्टिंग तो नहीं हुआ ना. तो इसलिए कुछ चैलेंजेस आते हैं कन्वर्जन में. तो जब हम मेन करने जाते हैं प्रोडक्ट बनाने, तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, अरे ये तो गड़बड़ है. ओके, टूट ही रहा है, कुछ कॉर्नर से टूट रहा है, वो तो गलत हो गया. फाइन. So this completes conversion. Number 6, challenges and the funds required. I am open for any interaction. The floor is open for interaction, and I guess I have taken the stipulated time of 1 hour. So I request the host or moderator to throw some questions in the chat box or Yes, thank you, sir. Thank you so much, sir. Page Kiran, sir. Yeah, ma'am, your voice is coming low. Can you please speak louder? Okay. Just a minute. Thank you so much, sir. You have given a spacious time to in this session. Now, Page Kiran, sir, you can ask the question if you are here now. I think sir is not. Any query by anyone related Yes, to the topic? I think no questions is not, but एक सर उनके students, you can ask the questions. Sir is here. Yes, sir. तेजकरण सर के पास एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है इसका एसी का, हो सकता है उसमें कोई क्वेश्चन आए हो बच्चों के. Yes, sir. Definitely, sir. You give your इसमें- mail ID, then we will pass the questions. इसमें सर मेरा एक क्वेश्चन था छोटा सा, हाँ जी. कि इसमें जैसे किस फील्ड के किस तरीके के स्टार्टअप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना फंडिंग करती है, मतलब उसको प्रमोट करने के लिए. देखिए, अभी इस समय तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है. जी. हेल्थ केयर इंडस्ट्री में दिस इज द टाइम वेयर यू कम विद एनी प्रपोजल, एनी आइडिया, एंड यू विल फाइंड रेडी इन्वेस्टर्स, प्रोवाइडेड अभी जो हमने प्रोसेस बताई है सारी. जी. ओके, अभी आपने विनय सर, वेरी गुड डेट क्वेरी. अभी साउथ में बेंगलोर में मेरे मित्र मिलके आए, तो ही हैज़ डेवलप्ड हीमोग्लोबिन जो चेक करते हैं उसका उसने नॉन इन्वेजिव तरीका निकाला है. जैसे अभी आजकल टेम्परेचर कैसे सेंस होता है, इंफ्रारेड, ऐसे उसने कुछ टूल निकाला है जिससे बिना प्रिक करे, जो हम उंगली में प्रिक करना पड़ता, भले से एक बूंद खून निकलता है, तो फॉर डायबिटिक पेशेंट्स तो वो निकाला है उसने. एंड ही इज़ फाइंडिंग सो मेनी इन्वेस्टर्स नाउ. तो हेल्थ केयर, हेल्थ इसमें बहुत ज़्यादा हैं. एंड अभी जो थ्रस्ट एरिया हैं, ओके, दैट AI रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एवरी, उधर भी काफ़ी स्कोप है. बट एज ऑफ नाउ आप अभी की बात करें, पिछले 3 महीने और आने वाले 5-6 महीने, द हेल्थ टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर विल बी द बूमिंग सेक्टर. यस प्लीज. तेजकरण सर, सर आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप म्यूट है सर. मैं हूँ उस ग्रुप में. सर सुन रहा हूँ सर. हाँ. सर इसमें तो सर अभी कुछ क्वेरी नहीं आई है, ऐसा कुछ आया नहीं है. सर ने वैसे बहुत अच्छे से सेशन में सारी चीजें क्लियर की है कि कैसे हम प्रोटोटाइप को बिल्ड करते हैं, फाइनल उसका वैलिडेशन करते हैं, उसको टेस्टिंग करते हैं, फाइनल में कन्वर्ट करते हैं उसको. तो वन क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड है सर, कि जो एक आइडिया जनरली जो आता है हमारे माइंड में फाइनली जो इनिशियल में, तो
तो हम उसको एक अच्छे लेवल पर कैसे लेके जाएं? कोई आइडिया सपोज है हमारे पास में, आइडिया बहुत सारे आते रहते हैं कि मैं ये बना लूँ, ये बना लूँ, बहुत सारे चलते रहते हैं, स्टूडेंट भी बोलते हैं सर ये बना ले, हम ये बना, लेकिन फाइनल मतलब एक उसको एक गुड प्लेटफॉर्म पर हम कैसे लेके जाएं कि हाँ ये सही रहे? तेजकरण सर, इसमें पर्सनली जो मेरा खुद का तरीका होता है, बच्चे आते हैं आइडिया लेके, तो नंबर 1 आप उनको एनकरेज करिए ना, यू कैन नॉट डिस्करेज उनको। कहीं पर हमें लगता है आइडिया बहुत ही खराब है, फॉर एग्जांपल आई एम शेयरिंग विथ यू, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में और इसमें स्पीड ब्रेकर से इलेक्ट्रिसिटी बनाने का आइडिया लेके आते हैं लोग। जी जी स्पीड ब्रेकर्स मैं फेडअप हो गया, इतने आए वो आइडिया, अल्टीमेटली मैंने बोला बट वंस ए स्टूडेंट कम्स तो उसको डिस्करेज नहीं करेंगे कि ठीक है भले से हमें लग गया आइडिया इसका अजीब है। सेकंड जो आपका जो क्वेरी है, आस्क हिम और हर टू राइट इट डाउन, उसको बोलो लिख के लाओ और इसमें कॉस्ट क्या आएगी अप्रॉक्स बताओ। तो अगर वो आइडिया थोड़ा भी काम का होगा, बच्चे ने थोड़ा भी सोचा होगा तो वो लाएगा, नहीं तो वो आएगा ही नहीं दोबारा। तो एक तरीका ये होता है, ओके, आउट ऑफ 10 6-7 विल नेवर कम, क्योंकि वो आइडिया तो बच्चों के दिमाग में आते रहते हैं। So this is one method, and second you should have a pool of mentors, जैसे हर डिपार्टमेंट के हेड्स हैं या IIC मेंबर हैं, इनकी ट्रेनिंग चलती रहती है। So they know how to filter the idea, बच्चे से बात करके, then उसके साथ में मेंटर रख के, then you can fine tune the idea. आइडिया इनिशियली हो सकता है बड़ा रफ हो, बट वो उससे कुछ निकल सकता है। Then, तो ये 2 मेथड्स पर्सनली आई सजेस्ट, नॉट बुकिश नॉलेज, एक तो लिख के लाने को बोलो, दूसरा उसको कुछ मेंटर से कनेक्ट कर दो। जैसे आप सपोज मैकेनिकल डिपार्टमेंट के हैं और कुछ सेंसर वाला आइडिया लाया, तो यू कैन कनेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक्स गाय, ओके, रादर देन सेइंग नो फ्रॉम योर साइड, राइट। हो सकता है सर, दूसरा सर ये थोड़ा सा आपसे जानना था कि सपोज जैसे कोई ऐसा अच्छा प्रोजेक्ट है या कोई अच्छा स्टार्टअप है, कोई अच्छा आइडिया है, थोड़ा सा उसमें हमें फंड की नीड्स है सपोज, तो कुछ गवर्नमेंट के थ्रू कुछ ऐसा है प्रोविजन, या कहीं कोई गवर्नमेंट एजेंसी है जो उसमें हमें कुछ हेल्प करे कि थोड़ा सा आप फंड लेकर कुछ टेस्टिंग करो? राइट। देखिए अभी आई थिंक दीपक जी जानते होंगे, देयर इज अ स्कीम बाय AICTE एंड MOE ओनली, इट्स कॉल्ड युक्ति 2.0। ओके, तो वो पोर्टल है पूरा, जैसे IISc का पोर्टल है युक्ति 2.0, वेयर यू कैन हैव योर आइडियाज अपलोडेड, तो पूरा इकोसिस्टम में वो दिखता है। ओके, एंड देयर आर डिफरेंट स्कीम्स बाय नॉट ओनली AICTE और मिनिस्ट्री, वी हैव MP कॉस्ट ऑल्सो, भोपाल में ही है उनका ऑफिस, तो वो भी काफ़ी फंडिंग करते हैं उसको। अभी ये ऑक्सीजन जनरेटर जो है, कंसंट्रेटर बनाया था मैंने 3 महीने पहले, तो कॉलेज से फंड लिया, बट बाद में पता लगा MSME भी फंड दे रहा है उसमें। तो आपके साथ में ऐसे कुछ बैक ऑफ द माइंड जो मैनेजमेंट के पर्सन हैं, दीपक जी हैं, ऐसे उनको पता रहता है कि कहाँ कनेक्ट करना है। सो यू शुड हैव अ पूल ऑफ सच एक्सपर्ट्स वो कैन डायरेक्ट यू। तो MSME ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए पूरा सेशन लिया और उन्होंने बताया कि वी विल फंड यू, आप बनाओ तो सही, क्योंकि शॉर्टेज थी। सो लोकल बॉडीज एंड नेशनल बॉडीज आर अवेलेबल। DST बहुत बड़ी चीज़ होती है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, बट हम MP कॉस्ट, ओके, इनसे भी हम फंडिंग ले सकते हैं। थैंक यू। एनीवन क्वेरी फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स? Any query from other participants? Sir, I think there is no. Okay, thank you so much. I Okay, request. thank you so much, sir. Thank you, sir. I request. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, Ma'am, you have to give my highly gratitude to Sir Amit Kumar. Dr. Amit Kumar give a spacious time to this session. Sir has clear all the aspects, all the facts which is useful for a prototype startup. Now I would like to thanks to our guest, Dr. Amit Kumar Mewar, have give a spacious time to all of you. And Thank you. Your knowledge is very powerful. I think so. It is very useful to all the. Thank you. Thank you. They want to, because you have a technical. You have to create each and everything. How to manage, how to validate, how to this one. Each and everything which is useful to
all these students, they have to want to grow the startup. So, and I would like to thank to our Dean, Dr. Sanjeev Kumar Gupta. Always he has encouraged and cooperate to all the programs. Now I would like to our team, IIC, and all these which is using this one thing. Now, sir, I would like to thank you, sir. Sir, thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Sharma ma'am, Tejkaran sir, Vinay sir, Deepak sir. Thank you for having me here. Have a nice day. Thank Next you, time we sir. will call to our university with this time. I hope I tried to deliver what was asked from me. Yes, और sir. दीपक जी मेरे दोस्त हैं, उनको निराश नहीं किया होगा. Deepak sir is always बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. So now I am ending meeting. Thank you all of you. Thank you. Please allow me to leave the meeting now. Thank you. Thanks to Yes, sir. the Thank university you. also. Thank you. Thank See you. you. Take care. Okay, thank you. Take good care, everyone. Bye bye.